So, hi guys, welcome back to our channel Legal Lift. I hope you all are fine, and I also hope our videos are helping you in your preparation. Just a request that please subscribe, like, comment, and share our channel as much as you all can do, because that's our only motivation to work ahead with enthusiasm. So, yeah, moving ahead, this is your fourth video for legal reasoning, in particular tort law. So, in previous video we discussed about the general defenses in tort law. Some of them were done and a few are left, so we'll be continuing that in this video. So the next general defense is statutory authority. A person cannot complain of a wrong which is authorized by the legislature. When a statute specially authorizes a certain act to be done by a certain person which would otherwise be unlawful and actionable, no action will lie at the suit of any person for the doing of that act. सो व्हाट दिस मीन्स इज़ कि कोई भी पर्सन ऐसे रॉन्गफुल एक्ट के लिए कंप्लेन नहीं कर सकता जिसको करने के लिए देयर वाज सम लीगल बैकिंग। मतलब डिफेंडेंट को लीगली ये रॉन्गफुल एक्ट करने का राइट था, और क्योंकि लीगली उसको ये राइट था तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई सूट या केस फाइल नहीं हो सकती। So, as said by Salman is a famous jurist. So, as said by him, for such a statutory authority is also statutory indemnity, taking away all the legal remedies provided by the law of torts for person injuriously affected. So, statutory authority means an authority which is given by law, whose rules are written down formally in the constitution. So, मतलब कोई ऐसी अथॉरिटी जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मली लिखा गया है, उसके वो क्या रूल्स फॉलो करेगी, वो कैसे वर्क करेगा, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. सो दैट काइंड ऑफ पावर जिसके पास है उसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कहते हैं. सो ऐसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के लिए स्टैट्यूटरी इंडेमनिटी भी होती है. इंडेमनिटी मीन्स एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी और डैमेज, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी लायबिलिटी, कि आपने कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया है पर फिर भी आप उसके लिए लायबल नहीं हो. इंडेमनिटी मतलब ऐसा ऐसा प्रोटेक्शन जो लॉ आपको प्रोवाइड करता है कि इवन तो आपने रॉन्गफुल एक्ट किया है फिर भी आप उसके लिए लायबल नहीं होते. So again, ऐसी statutory authority के लिए there are some protection too which take away the rights of plaintiff to sue or file a case and get remedies. So ऐसे जो indemnities होते हैं वो plaintiff के right take away कर लेते हैं कि वो अब defendant को sue या केस फाइल नहीं कर सकता या उसको अब रेमेडी नहीं मिल सकती क्योंकि वो wrongful एक्ट करने के लिए देयर वाज सम लीगल बैकिंग. उसको लीगली अलाउड था, डिपेंडेंट को लीगली अलाउड था ये करना जो अदरवाइज अनलॉफुल होता, बट क्योंकि यहाँ पे लॉ ने उससे ये पावर दी है कि वो ये एक्ट कर सकता है इसलिए वो अनलॉफुल नहीं है और आप उसको स्यू नहीं कर सकते. So if this is an example. If I construct a bridge under the authority of a statute, and if anybody is denied his right of way and traffic through that way for a specific period, no suit can be brought against me, for what I have done is in pursuance of statutory authority. So अगर मैंने as a person मैंने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया और वो ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने की वजह से लोगों को ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, देन ऑल्सो वो लोग मेरे ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि मेरा वो ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना इज़ अंडर एन अथॉरिटी. मुझे ये गवर्नमेंट के साइड से बोला गया है करने को. सो दैट्स वाई आई एम नॉट लाइबल कि किसी को भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है या किसी और तरह की प्रॉब्लम हो रही है. Next example is in Vaughan versus Taft Rail Company. Sparks from an engine of the respondent's rail company set fire to the appellant's wood on adjoining land. It was held that since the respondent had taken proper care to prevent the emission of sparks, and they were doing nothing more than that the statute had authorized them to do, they were not liable. सो इस केस में क्या हुआ, एक रेल कंपनी ने कुछ रेलवे ट्रैक्स बनाए और जब भी ट्रेन चलती है तो कुछ स्पार्क्स जनरेट होते हैं और वो स्पार्क्स जनरेट होने की वजह से अपेलेंट के वुड्स को नुकसान हुआ.
बट यहाँ पे रेल कंपनी लायबल नहीं है क्योंकि रिस्पोंडेंट ने उतना ही काम किया, डिफेंडेंट ने, रिस्पोंडेंट एंड डिफेंडेंट आर द सेम एंड अपेरेंट एंड प्लेंटिफ आर सेम। ओके, अपेरेंट मतलब यहाँ पे जो जिसको डैमेज हुआ है एंड रिस्पोंडेंट इज द पर्सन जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। सो यहाँ पे रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट ने कुछ भी ऐसा अलग से नहीं किया था जिसके लिए उसे परमिशन नहीं थी करने की अंडर द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। जितना उसको परमिशन दिया गया था उसने उतना ही काम किया, प्रॉपर केयर लिया एंड दैट्स व्हाई ही इज़ नॉट लायबल, क्योंकि उसने अपना काम किया जो जो लॉ के अकॉर्डिंग उसे करना चाहिए था। However, when an act authorized by the legislature is done negligently, then an action lies. In Smith versus London and South Western Railway Company, the servants of railway company negligently left trimmings of grass and hedges near a rail line. Sparks from an engine set the material on fire. By a heavy wind, the fire was carried to the nearby plaintiff's cottage, which was burned. Since it was a case of negligence on the part of railways courts, they were held liable. So जैसे कि आपने देखा कि पहले वाले केस में द डिफेंडेंट वॉज नॉट लायबल बिकॉज ही टुक प्रॉपर केयर। उसने अपने काम करते वक्त सारा केयर लिया, कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट नहीं किया, कोई भी केयरलेसनेस नहीं दिखाई। सो ऐसा होता है कि अगर इवन दो a person A is authorized by law to do some act, but अगर वो एक्ट वो नेग्लिजेंटली करता है और उसके नेग्लिजेंटली वो एक्ट करने की वजह से कोई लॉस सफ़र हो रहा है किसी को, देन ही विल बी मेड लायबल, क्योंकि ए को एक काम दिया गया था जो उसने जिसमें उसने केयरलेसनेस दिखाई और उसकी वजह से डैमेज हो रहा है, सो ही विल बी लायबल. So in this case, Smith versus London and South Western Railway Company, the same happened. यहाँ पे the respondent left some grasses near the railway line, और ये बहुत ऑब्वियस है कि रेलवे लाइन के पास अगर आप ग्रास या कुछ ऐसे ट्रिमिंग्स छोड़ोगे तो स्पार्क्स की वजह से दे कैन कैच फायर, और वो फायर इंक्रीज हुई, स्प्रेड हुई एंड द प्लेंटिफ सफर डैमेज. सो यहाँ पे द रेलवे को द respondent will be liable because due to his negligence the damage was caused. So the next defense is plaintiff the wrongdoer, where the plaintiff is himself the wrongdoer. If the defendant's fault causes loss to the plaintiff, defendant has to bear the loss by compensating to the plaintiff. This is simple. अगर डिफेंडेंट के फॉल्ट की वजह से प्लेंटिफ को कोई नुकसान होता है तो डिफेंडेंट को वो लॉस बेयर करना पड़ता है, डिफेंडेंट को कंपेंसेट करना पड़ता है प्लेंटिफ को. Thus, a loss suffered by plaintiff on account of defendant fault is shifted to the defendant. सेम इसका भी यही मतलब है कि जो भी लॉस प्लेंटिफ को सफ़र हुआ है उसकी लाइबिलिटी डिफेंडेंट पे है, उसका फॉल्ट वो डिफेंडेंट के फॉल्ट की वजह से हुआ है, इसलिए डिफेंडेंट को कंपेंसेट करना पड़ता है. बट इन मैनी केसेस दो द एक्ट ऑफ डिफेंडेंट कॉजेज हार्म टू द प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट में बी द रीज़न फॉर द लॉस. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफेंडेंट के एक्ट की वजह से ही प्लेंटिफ को हार्म कॉज हुआ है, बट वो हार्म कॉज होने का एक रीज़न प्लेंटिफ की खुद की भी कुछ गलती थी. So for an example, in Boloch versus Smith, a person who having occasion to come to the house of another strays from the ordinary approaches to the house and trespasses upon the adjoining land, where there is no part, has no remedy for any injury, where there is no part, and he has no remedy for any injury which he may sustain from falling into the unguarded wells or pits, as the injury is a result of his own carelessness or misconduct. So यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन है जो किसी दूसरे इंसान को अपने घर पे इनवाइट करता है, बट द अदर पर्सन इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द करेक्ट हाउस वो किसी और के लैंड पे ट्रेसपास कर जाता है और वहाँ पे ही सफर्स इंजरी बाय फेलिंग इनटू some unguarded wells or pits. तो यहाँ पे प्लेंटिफ की खुद की गलती है कि वो उसने केयरलेसनेस दिखाई और वो जहाँ उसको जाना था वहाँ ना जाके वो किसी और के लैंड पे ट्रेसपास कर दिया. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द अबव डिफेंस, प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर. बट
but occupier of the land has duty to keep premises safe even in respect of trespassers. If he violates this duty, then he cannot take this defense and will be liable to the plaintiff. In such a case, there will be mutual torts and each party may sue to the other for the tort committed against him. So what this says is कि किसी भी लैंड के ऑक्यूपायर या ओनर की ड्यूटी है अगेंस्ट हिज ट्रेसपासर्स टू। उसकी ये भी ड्यूटी है कि उसके लैंड पे अगर कोई इलीगली ट्रेसपास कर रहा है तो भी उसको वो डैमेज कॉज ना करे जो कि रीजनेबल नहीं है, जो कि प्रोपोर्शनेट नहीं है। लाइक अगर आपके लैंड पे कोई ट्रेसपास कर रहा है तो लाइक अपने लैंड को ट्रेसपासर से बचाने के लिए यू कांट put electric fences of 240 volt or whatever it is. You can't keep dangerous animals on your land. You can't dug unguarded wells or pits to protect it from trespassers. So ओनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगेंस्ट ट्रेसपासर्स टू कि वो अपने लैंड को सेफ रखे। सो इस केस में, इस एग्जांपल में प्लेंटिफ की भी गलती थी और डिपेंडेंट की भी गलती थी। प्लेंटिफ की गलती ये थी कि वो अपने केयरलेसनेस की वजह से किसी और के लैंड पर ट्रेसपास किया, और डिपेंडेंट की गलती ये थी कि उसने अनगार्डेड वेल्स और पिट्स अपने लैंड पे करके रखा है, जिसकी वजह से किसी भी ट्रेसपासर को इंजरी हो सकती है। सो ऐसे केसेस जहाँ पे दोनों के तरफ से गलती होती है, दोनों ने कुछ ना कुछ टॉर्ट कमिट किया होता है, सो कोई भी मतलब दोनों ही पार्टी एक दूसरे को सू कर सकती है फॉर द टॉर्ट कमिटेड अगेंस्ट देम। So there are two situations where this justification can be applied. The justification of plaintiff is the wrongdoer. The first one is plaintiff caused the wrongful act to be committed by defendant. Defendant would not otherwise have committed the act. Second, the plaintiff alone is responsible for the loss. Defendant had no duty to avoid the loss to the plaintiff. If both plaintiff and the defendant are at fault, the loss will have to be shared by them in the proportion of their fault. This is called distributive justice. तो ऐसे दो सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे प्लेंटिफ रॉन्ग हुआ है। पहला केस वो जहाँ पे प्लेंटिफ ने कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया और उसके कुछ रॉन्गफुल एक्ट करने की वजह से डिफेंडेंट को भी कुछ रॉन्गफुल एक्ट कमिट करना पड़ा, वरना डिफेंडेंट नहीं करता। सो ऐसे केसेस में जहाँ प्लेंटिफ की भी गलती होती है और डिफेंडेंट की भी गलती होती है, दे शेयर द लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ द फॉल्ट। जिसकी जितनी गलती है उतना उसको कंपेंसेशन करना पड़ेगा। And the second case is plaintiff alone is responsible for the loss. Defendant had no duty to avoid the loss to the plaintiff. So second case ऐसा होता है जहाँ पे plaintiff की ही पूरी गलती होती है, डिफेंडेंट ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया होता है या उसकी कोई ड्यूटी नहीं होती है वो लॉस अवॉइड करने की। So ऐसे केसेस में fully this डिफेंस ऑफ प्लेंटिफ द रॉन्गडूअर कैन बी यूज्ड कि प्लेंटिफ ने ही कुछ गलत काम किया जिसकी वजह से उसे लॉस सफर हुआ। सो या मूविंग अहेड guys, I'll be making you practice principal fact questions for now. बाद में I'll discuss passage based questions too, so don't worry about it. ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट्स भूलो ना और क्वेश्चंस लाइक आपको समझ आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। So the first question is legal principle. An act of God is an operation of natural forces so unexpected that no human foresight or skill could reasonably be expected to anticipate it. So act of God ऐसा unexpected natural force होता है जो कि किसी भी ह्यूमन ने फोर्स ही नहीं किया होगा और जो कि रीजनेबली एक्सपेक्ट या एंटिसिपेट किया भी नहीं जा सकता। Factual situation: the New Friends Association was celebrating its 10th anniversary and arranged for the concert by a leading musical group. The event was organized in one of the best auditoriums and all the tickets were sold out. On the day of the event, an earthquake destroyed many buildings, including the auditorium. People who had purchased a ticket had asked for refund from the New Friends Association as show could not take place.
So the options are: the New Friends Association must refund the cost of tickets, the management of the auditorium must refund the cost of the tickets, the New Friends Association or any else need not refund the cost of tickets as it was an act of God. The ticket holders can demand the show to be organized at a later point of time. So ये तो आउट ऑफ बॉक्स है, ऐसा कुछ उसने पूछा नहीं है। यहाँ पे आपको न्यू फ्रेंड्स एसोसिएशन का आंसर करना है कि उसे रिफंड करना चाहिए कि नहीं। सो इन द फर्स्ट केस उसने सीधे लिखा है कि मस्ट रिफंड द कॉस्ट ऑफ टिकट विदाउट एनी लीगल रीजनिंग। एंड सेकेंड में पहले तो आप खुद से डिसाइड कर लो कि आंसर है क्या। आपको क्या लगता है न्यू फ्रेंड्स एसोसिएशन एनएफए को रिफंड देना चाहिए कि नहीं? सो द आंसर इज कि एनएफए को रिफंड नहीं देना चाहिए क्योंकि उसने अपने तरफ से पूरा प्रिकॉशन लिया। उसने वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम्स में वो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया, बट दे कुडंट एंटिसिपेट कि एक ऐसा अर्थक्वेक आएगा जो बहुत बिल्डिंग इतना हाई फ्रिक्वेंसी का अर्थक्वेक आएगा कि जो पूरे बिल्डिंग्स और ऑडिटोरियम को डिस्ट्रॉय कर देगा। दे कुड नॉट एंटिसिपेटेड। सो यहाँ पे उनकी गलती नहीं है। If this is an act of God, this comes under an act of God. So according to it, the first and second options are also eliminated because दोनों में must refund the cost of tickets लिखा। सेकेंड इसलिए भी गलत है क्योंकि द मैनेजमेंट, ऐसा कुछ मैनेजमेंट की कोई बात नहीं हुई है क्वेश्चन में और फैक्ट्स में। सो आपको अलग से ऐसे कोई वर्ड्स लेके नहीं आने अपने आंसर में। इवन इफ ये आंसर सही भी होता, उसमें लिखा होता कि उसको रिफंड नहीं करना, देन टू आपको ये नहीं चूज़ करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक नया वर्ड ला दिया गया है जिसके बारे में कोई मेंशन नहीं क्वेश्चन या फैक्ट्स में। सो क्योंकि 3 एलिमिनेट हो चुके हैं, द आंसर इज ऑप्शन सी, द न्यू फ्रेंड्स एसोसिएशन और एनी एल्स नीड नॉट रिफंड द कॉस्ट ऑफ टिकट एज इट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड। Second question, legal principle. A person cannot claim against the harm to which he has voluntarily consented. Precautions can only be taken against reasonable foreseeable mishaps. So, कोई भी पर्सन ऐसी चीज़ के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकता जिसके लिए उसने खुद से कंसेंट दिया। और प्रिकॉशन सिर्फ ऐसी चीज़ों के लिए लिया जा सकता है जो हम आप एंटिसिपेट कर सकते हो, जैसे जिसका आपको पता हो कि ये हाँ मुझे हो सकता है, उसी के अगेंस्ट आप प्रिकॉशन लोगे ना। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए तो आप उसके अगेंस्ट कैसे प्रिकॉशन ले सकते हो? सो दैट व्हाट दिस लीगल प्रिंसिपल मीन्स। सो फैक्चुअल सिचुएशन, एंड at an athletic meet, during a hammer throw, the hammer came apart and hit a middle distance runner who was sitting 10 meters outside the throwing area. The runner sustained severe injuries on the head and neck. The runner filed a suit for damages. The standard precautions were taken for throwing the 7-kilogram hammer. The runner would be able to recover because the organizers failed to keep the equipment in good condition. Would not be able to recover because the injuries were caused in a freak accident. Would not be liable as she agreed to participate in the sports with all the attendant risks. Would not be liable to recover damages because the accident was not reasonably foreseeable. So क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि standard precautions were taken, so the runner, आपका आंसर ये होना चाहिए कि रनर सो यहाँ आपका आंसर ये होना चाहिए कि रनर को रेमेडी नहीं मिल सकती बिकॉज इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन कि सारे प्रिकॉशंस लिए गए थे। सो अगर सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसे कहते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट, और इनएविटेबल एक्सीडेंट इज़ अ डिफेंस इन टॉर्ट लॉ। सो गोइंग बाय द ऑप्शंस, first option is wrong. Would be able to recover because the organizers failed to keep the equipment in good condition. ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है और लिखा भी गया है कि सारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ले गए थे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। सेकेंड, would not be able to recover because the injuries were caused in a freak accident.
मतलब वही इनएविटेबल एक्सीडेंट जो अचानक से हो जाए जिसका आपको पता ना हो, would not be, ये एबल है, लाइबल गलती से लिखा गया। सो एज शी अग्री टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स मीट विथ ऑल अटेंडेंट रिस्क, ये भी ट्रू है। अगर वो कोई स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट कर रही है तो ऐसे रिस्क तो वो लाइक वो कंसेंट, इट इज़ एन अज्यूम्ड कंसेंट, वो कंसेंट दे रही है कि अगर वो ऐसे स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसे ऐसे रिस्क फेस करने पड़ेंगे, ऐसे हार्म हो सकते हैं। वुड नॉट बी able to recover because the accident was not reasonably foreseeable. Again वही inevitable accident है। so अगेन वही बात है, अनफोर्सेबल एक्सीडेंट था जिसको कोई फोर्स ही नहीं कर पाया क्योंकि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लिए गए थे, इसलिए शी कांट रिकवर द डैमेजेस। और यहाँ पे अगर आपको थर्ड ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना, सेकेंड और फोर्थ तो पूरे करेक्ट है, तो सेकेंड और फोर्थ अगर करेक्ट है तो एक ही ऑप्शन बचता है डी। थर्ड में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है क्योंकि इसमें जो टॉपिक अप्लाई हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, वो लीगल प्रिंसिपल में नहीं लिखा है। जो टॉपिक अप्लाई हो रहा है वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। सो उसमें ऐसा है कि अगर उसने स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट किया तो उसने, इट इज़ अज्यूम कि उसने कंसेंट दिया है ऐसे रिस्क को फेस करने का, बट स्टिल वी गो बाय द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। उसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है अगर 2 और 4 करेक्ट है तो, क्योंकि 2 और 4 तो पक्का से करेक्ट है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी। Moving on to next question, question 3, legal principle. No remedy for the injury caused by an act to which one has voluntarily consented. Again, जिसके लिए आपने voluntary consent दिया है उसके लिए, सॉरी यहाँ पे ये मैंने कुछ गलत बोला, 3 वाले के लिए भी प्रिंसिपल तो दिया ही है वॉलंटरी कंसेंट वाला। सो यार 2, 3 और 4 पूरा ही करेक्ट है, उसके लिए भी सबके लिए लीगल प्रिंसिपल दिया है। मेरे कहने का ये मतलब था कि जो लीगल प्रिंसिपल होता है वही आप क्वेश्चन में अप्लाई करते हो ना, उसके अलग से आप नहीं कर सकते अप्लाई, मतलब अगर आपको पता भी है तो आपको नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये थोड़ा सा मिस कर दिया कि ऑप्शन 3 में जो लिखा है उसका भी लीगल प्रिंसिपल दिया है। सो यार तब तो डी इज़ फुल्ली करेक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3, लीगल प्रिंसिपल सेम, जिसके लिए आपने वॉलंटरी कंसेंट दिया वैसे हार्म के लिए आप, वैसे इंजरी के लिए आप कोई रेमेडी नहीं, आपको नहीं मिल सकती कोई रेमेडी और आप सू नहीं कर सकते। So factual situation, in an exhibition cricket match, Sachin hit a full toss delivery of Shane Bond over the fence for a six. The ball fell on the head of Egghead, a spectator, and severely injured him. Egghead had purchased a ticket costing ₹1,000 to watch the match. Egghead and the organizers of the match were sworn enemies. Option A, can recover the cost of his medical expenses from Sachin, can recover the cost of his medical expenses from Shane Bond, can recover the cost of his medical expenses from organizers. Nobody would be liable to pay anything to Egghead. क्लियरली ऑप्शन डी आंसर है, क्योंकि एगहेड अगर वो मैच देखने गया है तो इतना तो उसने वॉलंटरी कंसेंट दिया है कि एक बॉल उसे, लाइक क्रिकेट का मैच है, इट इज़ ईजली फोर्सेबल कि उससे ऐसा हार्म हो सकता है, फिर भी वो मैच देखने गया तो इसका मतलब उसने अपना कंसेंट दिया ऐसे हार्म को सफ़र करने का। तो क्लियरली डी है, क्योंकि बाकी सब में उसमें अपोजिट आंसर लिखा है, कैन रिकवर द कॉस्ट, but he can't recover the cost because he had voluntarily consented being a spectator. Moving on to question 4, legal principle, damages cannot be claimed against the risk to which consent has been given. The principle does not apply to rescue cases. Again same, ऐसे एक्ट्स के अगेंस्ट डैमेजेस रिकवर नहीं हो सकते जिसके लिए आपने कंसेंट दिया है, बट ये प्रिंसिपल रेस्क्यू केसेस में अप्लाई होते हैं। अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे को बचाने के चक्कर में अपने आप को इंजरी कॉज कर ली है, तो ऑल्दो उसने कंसेंट दिया, उसने जानबूझ के वो इंजरी ली है अपने ऊपर, बट स्टिल क्योंकि वो एक रेस्क्यू केस है उसमें ये अप्लाई नहीं होता है।
ये एक लीगल प्रिंसिपल है, ये लॉ में लिखा हुआ है कि रेस्क्यू केसेस में ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। Factual situation: X and Y bought tickets to have a ringside view of a football match. During the course of the game, a hard kick from one of the players caused the ball to hit X on his nose, causing bleeding and nausea. After half-time, the organizers allowed entry of more spectators than the seating capacity of the stadium. In the resulting stampede, R and S, who were watching the match since beginning, got injured. 5 minutes before close of play, a part of stadium roof broke loose. Y rushed to save children sitting beneath the roof and in the process injured herself. In separate actions filed by injured person, decide X shall not be able to recover as he consented to the risk of flying ball. True. X shall be able to recover as the organizers failed to take precautions against the flying ball. X shall be able to recover as he consented to watch the game, not to be injured by it. X shall not be able to recover as by purchasing a ringside seat in football game he consented to all the attendant risk of such watching. So यहाँ पे अगर सिर्फ X की बात की गई है तो आप सिर्फ X का ही केस देखोगे, आप ये सब Y और R एंड S का नहीं देखोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में सब में X की बात की गई है। सो X के साथ क्या हुआ था, उसे एक बॉल ने हिट कर दिया था नोज पे, और उस वक्त तक ये सब नेग्लिजेंस ऑर्गेनाइजर्स के तरफ से नहीं हुई थी, जो बाद में हुई है R, S और Y के टाइम पे। सो X तो रिकवर नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि अगर उसने अगर वो मैच देखने के लिए आया है तो उसका वॉलंटरी कंसेंट है कि उसको ऐसे हार्म सफ़र हो सकते हैं जो कि किसी प्लेयर के बॉल लगने से हुए उसको। तो यहाँ पे ऑप्शन A और D ही है, बट वी विल चूज ऑप्शन D, क्योंकि ऑप्शन D में क्या है, वो लीगल बैकिंग के साथ साथ फैक्ट्स की भी बात कर रहा है। मैंने आपको एक बार और बताया था कि लीगल रीजनिंग के आंसर में 3 चीज़ होती है। पहला तो आप डिसाइड करो कि आंसर है क्या, लाइबल है, नहीं लाइबल है, जो भी है, पहला आप उसको डिसाइड करो। दूसरा, वहाँ उसमें लीगल रीजनिंग, करेक्ट लीगल रीजनिंग होनी चाहिए। और तीसरा, वो लीगल रीजनिंग किस फैक्ट्स पे अप्लाई हो रही है वो होना चाहिए। सो ऑप्शन डी में ये तीनों चीज़ें हैं। X shall not be able to recover, पहली चीज़ वो डिसाइड कर रहा है, डिसीजन दे रहा है कि नहीं रिकवर कर पाएगा। by purchasing a ringside seat in a football game, he consented to all the attendant risk of such watching, ये लीगल बैकिंग है। सेकेंड वाली थर्ड पार्ट कि उसने कंसेंट दिया था, और ये जो बीच का पार्ट है ये फैक्चुअल सिचुएशन है, वो इस फैक्ट पे लीगल रीजनिंग अप्लाई कर रहा है। सो ऑप्शन डी is the correct answer. As we choose the best amongst the four, so we choose D, because A में इतना डिटेल आंसर नहीं है और उसमें मिसिंग द फैक्ट्स, द किस फैक्ट्स पे वो लीगल रीजनिंग अप्लाई हुई है वो उसमें ऑप्शन ए में मिसिंग है, इसलिए we choose ऑप्शन डी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक इस वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो से we will discuss different types of frauds like trespass, negligence, and others. So yeah, that's it for this video. See you in the next video. Thank you.